معزز محتشم سامعین، بہت ہی غور کے ساتھ کام لگا کر سننے والی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد المنان الذي خلق الإنسان وأنطق له اللسان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وقال في مقام آخر، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، آمين آمين إلى غد النهاية۔ جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاتے لذتے خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بود بڑھتا ہے، غلط روی سے منازل کا بود بڑھتا ہے، مسلمانوں مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، اور ایک چیز کی کمی ہو تو اس کو چھیڑو، رہ رہ کے سینکڑوں باتوں کا خیال آتا ہے، اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ آئیے ہمارا مل کر نہایت ادب و سلیقے کے ساتھ بارگاہ رحمت للعالمین میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ درود پاک پڑھیں۔ سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے امام صاحب نے بتایا کہ بہت دور سے چل کے آیا ہوں، یقیناً صحیح بات ہے کہ ہم سے شکایت کر رہے تھے کہ آپ اسی گاؤں میں 3 دن سے ہیں لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، اور یہ بھی حسن اتفاق ہے، اور ہمارے احمد رضا بھائی اور ان کے والد صاحب عالی جناب جمیل احمد عرف پونے بابا ٹھیک نہیں رہے، اچھا ادھر یقیناً ان کی محبت ہے، اور ان کی محبت نے مجھے یہاں تک کھینچ لائے، ورنہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ موقع آتا ہے لیکن میں نہیں رہتا، لیکن یہ حسن اتفاق ہے، تو اتنے دور سے چل کے آیا، پھر صبح جانا بھی ہے۔ ابھی آپ نعتیہ کلام سن رہے تھے، ہمارے ایک ساتھی صاحب کہہ رہے تھے اور پڑھیے، بے شک جہاں نعت کے اشعار سننے سے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، نعت اور منقبت کے اشعار جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے دل کو چین ملتا ہے، جب نعتیہ کلام ہم سنتے ہیں تو ہمارے دل کو تسکین حاصل ہوتی ہے۔ یقیناً نعت سن کر ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، ہمارے ایمان میں بالغی پیدا ہوتی ہے، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، لیکن وہیں پر رک کر کے جہاں نعتیہ کلام ہمارے ایمان میں تازگی پیدا کرتے ہیں، وہیں بیان مصطفیٰ اور ذکر مصطفیٰ جب ہم سنتے ہیں تو صرف ہمارا ایمان ہی تازہ نہیں ہوتا ہے بلکہ بیان مصطفیٰ سن کر کے ہماری نسلیں سنورا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت بہت اس لیے بیان مصطفیٰ بھی ضروری ہے، تقریر بھی ضروری ہے۔ ہمارے امام صاحب نے بتایا کہ بیان ہی سے اصلی اسلام ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے، ہمارے جو شورا حضرات ہیں ان کا بھی بہت بڑا کرم ہے، خاص طور سے ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کی زندگی پر، ہمارے معاشرے کے جو نوجوان ہیں ان کی زندگی پر شورائے اسلام کا بھی بڑا احسان ہے
जब वो नातिया कलाम पढ़ते हैं तो उनके नातिया कलाम को हमारे माशरे के नौजवान कैप्चर करके उन्हीं नातिया कलाम को सुनते हैं और पढ़ते हैं, और सिर्फ पढ़ते ही नहीं बल्कि नातिया कलाम को गुनगुनाते नजर आते हैं और अपने आप को गानों से महफूज करते नजर आते हैं। और इसलिए बयान मुस्तफ़ा, जिक्र मुस्तफ़ा, नाते मुस्तफ़ा दोनों चीज जरूरी है। मैंने जिस आयत की तिलावत की, अल्लाह उसमें इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, ऐ ईमान वालों ईमान लाओ। ये तो महफिल अकीका और फतने मसनूना की मुनासबत रखी गई है, लेकिन मैं अपना मौजू इनके घर को और उनके ईमान को बनाकर अपनी बात को कहने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, ऐ ईमान वालों ईमान लाओ। अल्लाह ईमान वालों से कह रहा ईमान लाओ। अगर आप बैठे हैं और आपसे कहा जाए अरे बैठने वाले बैठ जाओ, आप कहेंगे मौलाना साहब हम तो पहले से बैठे हैं, अब फिर आप बैठने की बात कर रहे हैं, इसलिए आपकी बात मुहम्मल है, बेमौजू है, बेकार है, आपका कहना सही नहीं है। लेकिन तब अल्लाह ने क्यों फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, ऐ ईमान वालों ईमान लाओ। ईमान वालों से कहा जा रहा है ऐ ईमान वालों ईमान लाओ। मामला क्या है? मामला समझ में नहीं आता है। आइए देखें, अगर हम इस आयत में गौर करें और जमाने मौजूदा के हालात का जायजा ले तो अल्लाह हर चीज को जानने वाला है, पास्ट को भी जानता है, माजी के हालात को भी अल्लाह की खबर है, आने वाले जमाने के बारे में अल्लाह जानता है। अल्लाह आलिमुल गैबी व शहादा है, हर चीज के बारे में उसको खबर है, अल्लाह जानता है। एक जमाना ऐसा भी आएगा, नजदीक का तूफान आएगा और मुसलमानों के ईमान पर हमला करने की कोशिश करेगा, मौलाइयत की आंधी चलेगी, मुसलमानों के ईमान पर हमला करने की कोशिश करेगी, सल्फियत का तूफान आएगा, देवबंदियत की आंधी चलेगी और ईमान वालों के ईमान पर हमला करने की कोशिश करेगी। अल्लाह ने पहले ही से इरशाद फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, ऐ ईमान वालों ईमान लाओ। मतलब ये है अल्लाह ने तुम्हें जो ईमान की दौलत अता की है उसे कभी ना खोना, चाहे लज्जत का तूफान आए, चाहे सल्फियत की आंधी चले, चाहे देवबंदियत की आंधी चले, तुम्हें जो अल्लाह ने ईमान अता किया है, ईमान की दौलत अता फरमाई है, ईमान का सरमाया दिया है, उस ईमान की दौलत को संभाले रखना और ईमान पर कायम रहना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बहुत पहले फरमा दिया, कोई भी आंधी आए, नजदियत, सल्फियत, वहाबियत, देवबंदियत, कोई भी तूफान आए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, ऐ ईमान वालों हमने जो तुम्हें ईमान की दौलत अता की है उस ईमान पर कायम रहना। अब आइए कुरान की आयत उठा करके देखते हैं, 24वें पारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। यानी अल्लाह इरशाद फरमाता है, जिन लोगों ने कहा रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, यानी अब ईमान ले आए हैं, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर वो अपने ईमान पर कायम रहे हैं, ईमान पर डटे रहे, तो अल्लाह उन्हें यह खुशखबरी सुनाता है, अल्लाह उन्हें यह फायदा अता करता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो ईमान पर कायम रहते हैं, ईमान पर डटे रहते हैं, अल्लाह की तरफ से उन पर रहमत के फरिश्ते नाज़िल होते हैं। और यही तक नहीं, औलिया किराम जो गुजरे हैं, हमारे जो असलाफ गुजरे हैं, आप उनकी जिंदगी तो उठा करके देखें। हमारे जो औलिया किराम हैं, जिनकी बारगाह में हम हाजिरी देते हैं, अगर आप उनकी सीरत को पढ़े तो पता चलेगा वो हमारे औलिया किराम जमीन के जिस भी चप्पे में चले जाते, जमीन वाले उनका इस्तेकबाल करते नजर आते, शजरो हजर उनका वेलकम करते नजर आते। वो दुनिया की किसी चीज से खौफ नहीं करते, वो दुनिया की किसी चीज से डरते नहीं थे। क्यों? उसकी वजह यह है, उन लोगों ने कह दिया रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, हम अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं, फिर अपने ईमान पर वो कायम रहे हैं, अल्लाह की तरफ से रहमतें नाज़िल होती है। अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है, जो ईमान पर कायम रहता है, जो ईमान पर डटा रहता है, अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, जो ईमान पर कायम रहेगा। ऐ मुसलमानों, अल्लाह ने ईमान की दौलत अता की है, ईमान पर कायम रहोगे तुम्हें ये फायदा मिलेगा, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, तुम्हें किसी चीज का खौफ नहीं होगा, तुम्हें किसी चीज का गम नहीं होगा। औलिया किराम क्यों किसी से नहीं डरते? क्यों किसी चीज का खौफ उनके दिल में नहीं था? वजह यही, वो ईमान लाए, उनके पास ईमान था और ईमान की दौलत को पा करके ईमान पर साबित कदम रहे। तब अल्लाह ने उनके लिए मुस्तस्नाया, अल्लाह तखाफू, अरे मेरे औलिया किराम, अब तुम्हें किसी चीज का खौफ नहीं, वला तहज़नू, और तुम्हें किसी चीज का गम नहीं। और यही तक नहीं, जो ईमान पर कायम रहता है, ईमान पर डटे रहता है,
اللہ اس کے لیے بشارت یہ سناتا ہے. اسی آیت کریمہ میں اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. جو ایمان پر قائم رہتے ہیں انہیں وہ جنت کی بشارت سنا دو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا. اب سوچیں جو ایمان جن کے پاس ایمان کی دولت ہے, ایمان کا سرمایہ ہے, اللہ انہیں کتنا فائدہ عطا کر رہا ہے اور انہیں کتنی خوشخبری سنا رہا ہے. آج آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں, اپنے معاشرے کا جائزہ لیں, مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیں, چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا, چاہے نوجوان ہو چاہے عمر رسیدہ انسان ہو. آپ ہر انسان کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں. آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز ضرور ملے گی. آپ ضرور اگر سروے کریں گے, آپ پتہ کریں گے تو آپ ضرور یہ کہتے نظر آئیں گے آج مسلمان دین سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے. آج مسلمان کے پاس دین سے بہت دوری ہو گئی ہے, مسلمان دین سے پیچھے ہوتا جا رہا ہے. کیا ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے آج مسلمان دین سے دور کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمان کی دوری اسلام سے کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں, اس کی وجہ یہی ہے اس لیے کہ ہمیں جو اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے, ایمان کا جو سرمایہ عطا کیا ہے, ہم نے اس ایمان کی دولت کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہے. ایمان کا جو سرمایہ ہمارے دل میں موجود ہے, اس ایمان کی دولت کا مقام کیا ہے ہم نہیں جانتے ہیں. ایمان کی عظمت کیا ہے ہمیں نہیں پتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے ہم ایمان کی عظمت کو نہیں سمجھ رہے ہیں, ایمان کے مقام کو نہیں سمجھ رہے ہیں. ایمان کا جو سرمایہ ہمارے دل میں ہے اس کا رتبہ کیا ہے ہم نہیں جان پا رہے ہیں. کیوں نہیں جان پا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے ہمیں اسلام ملا ہے محنت کے ذریعہ نہیں ملا ہے, مشقت سے نہیں ملا ہے, مصیبتوں کو چھیڑ کر کے نہیں ملا ہے, بلکہ ہم کسی مسلمان کے گھر پیدا ہوئے اسلام کی دولت ہمیں مل گئی ہے, اسلام کا سرمایہ ہمیں مل گیا ہے. ظاہر سی بات ہے جو چیز محنت کے ذریعہ حاصل کی جاتی ہے, مشقت کے بعد حاصل کی جاتی ہے, اس کا مقام بہت بلند ہوا کرتا ہے, اس کی عظمت ہمارے دل میں ہوا کرتی ہے, اس کا مقام ہمارے دل میں ہوا کرتا ہے. لیکن ہم کسی مسلمان کے گھر پیدا ہوئے اسلام ہمیں ایسے مل گیا ہے, باپ دادا سے مل گیا ہے, گھر سے مل گیا ہے, اس لیے ہم اسلام کی دولت کو نہیں سمجھ رہے ہیں, اسلام کی عظمت کو نہیں سمجھ رہے ہیں. ایمان کا مقام کیا ہے ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. آئیے فارن کنٹریز میں چل کر کے دیکھتے ہیں, فارن کنٹریز کے جب نان مسلم اسلام کی دولت سے سرفراز ہوتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں تو ویسے اسلام نہیں لاتے ہیں, ویسے مسلمان نہیں ہوتے ہیں. اور یہ فارن کنٹریز کے نان مسلم بڑے بڑے پادری اور عیسائی جب اسلام کی دولت سے سرفراز ہوتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, تو پہلے اسلام کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں, اسلام کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں, احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں, قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں, زمانے تک سارے تک اسلام کی تحقیق کرتے ہیں, تب جا کر کے محنت کے بعد مشقت کے بعد اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں. اور وہی بڑے بڑے پادری, وہی بڑے بڑے عیسائی جب اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں, اسلام کا سرمایہ پاتے ہیں, تو تنہا مسلمان نہیں ہوتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ سینکڑوں کو مسلمان کرتے نظر آتے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرے تکبیر, سبحان اللہ. اسلام کی عظمت, اسلام کا مقام کیا ہے ان نان مسلم سے پوچھے جو اسلام لانے والے ہیں, جو تحقیق کر کے اسلام لاتے ہیں, جو ریسرچ کر کے اسلام لاتے ہیں, ان کے دل سے پوچھیں تب وہ بتائیں کہ اسلام کی عظمت کیا ہے. انہیں کتنی مشقتیں جھیلنی پڑتی ہے, کتنی مصیبتوں سے دو چار ہوتے ہیں اور مصائب کے آلام ان پر ٹوٹتے ہیں, پھر بھی اسلام کی جو دولت انہیں ملتی ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ہوتے ہیں تو تحقیق اور ریسرچ کے بعد مسلمان ہوتے ہیں. اسلام کا مقام کیا ہے, اسلام کی عظمت کیا ہے, اسلام کا رتبہ کیا ہے, ہمارے دل میں جو ایمان ہے اس کا مقام کیا ہے. آئیے کوئی حضرت بلال سے پوچھے اسلام کی دولت کیا ہے. اگر آپ حضرت بلال سے پوچھیں گے اسلام کا مقام کیا ہے, ایمان کی دولت کیا ہے, تو حضرت بلال کی پیٹھ کی چربی تپتی ہوئی ریت پر ان کی پیٹھ کی چربی گواہی دے رہی ہوگی. اسلام کا مقام یہ ہے, اسلام کی دولت یہ ہے, اسلام کا سرمایہ یہ ہے. آئیے کوئی صہیب رومی سے پوچھے, اے صہیب رومی آپ بتائیں اسلام کی دولت کیا ہے, اسلام کا سرمایہ کیا ہے. تو صہیب رومی سے اگر آپ پوچھیں گے تو آپ ان کی سیرت کو پڑھیں گے, صہیب رومی کی زندگی پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اسلام کا مقام کیا ہے, ایمان کی عظمت کیا ہے. صہیب رومی ہے, بچپنے کا عالم ہے, مکہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں, ابھی وہ تجارت کی غرض سے حاضر ہوتے ہیں, بچپنے کے عالم ہے, ابھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہوئی ہے, اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضرین کا شرف حاصل نہیں ہوا ہے. مکہ شریف میں آتے ہیں, دوسری جگہ سے آتے ہیں, روم سے آتے ہیں, اور جب مکہ شریف میں آتے ہیں وہیں پڑھتے ہیں اور بڑے ہو جاتے ہیں. ان کے درمیان رہ کر کے مکہ والوں کے ساتھ رہ کر کے زندگی گزارتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, اور جب تجارت کر لیتے ہیں ان کے پاس
बड़ी बड़ी जायदादें हो जाती है, बड़े बड़े फ्लैट्स हो जाते हैं, उनके पास सोने के अंबार हो जाते हैं, हीरे जवाहरात उनके पास हो जाते हैं। अब एक बार अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होते हैं और अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होकर के अपना दिल हुजूर को दे देते हैं और इस्लाम से मुशर्रफ हो जाते हैं, ईमान ले आते हैं। अब अल्लाह के रसूल उनको कलमा पढ़ा लेते हैं, कुछ अय्याम गुजरते हैं। अब जब मक्का शरीफ में अल्लाह के रसूल तबलीग फरमा रहे हैं, इस्लाम की नशर इशाअत फरमा रहे हैं, मक्का वाले आप पर ऐसा जुल्म सितम बरसा रहे हैं। हुजूर का मक्का में रहना दोबार हो गया था। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे मानने वाले शहदाई, ऐ मुझे चाहने वालों, अब मक्का में हमारा रहना मुश्किल हो गया है, हमारा जीना दोबार हो गया है, अब यहाँ से हिजरत करके जाया जाए, यहाँ से रुखसत होना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल ऑर्डर कर देते हैं, सहाबे किराम के बाद दीगरे मक्का शरीफ से मदीना शरीफ हिजरत करके चले जाते हैं। खुद अल्लाह के रसूल भी हिजरत करके मक्का शरीफ से मदीना शरीफ तशरीफ ले जाते हैं। अब मक्का शरीफ में सुहैब रूमी बचते हैं, अल्लाह के रसूल के शहदाई बचते हैं। और सुहैब रूमी के दिल में तड़प पैदा होती है, उनका दिल भी मचलने लगता है, उनके दिल में आरज़ू पैदा होती है, हमारे साथी जा चुके हैं, हमारा महबूब तो मदीना जा चुका है, हमारे यहाँ पर हिजरत कर चुके हैं, अब हमें यहाँ रहना बेकार है, अब हमें नमाज़ों में दिल नहीं लगता है, अब हमें यहाँ रहकर क्या करेंगे? हमारे पास जायदादें मौजूद है, बड़े बड़े फ्लैट्स मौजूद है, लेकिन मेरा यार मदीना चला गया है, मेरा महबूब तो मदीना हिजरत कर चुका है, मेरे साथी तो मदीना जा चुके हैं, मुझे भी हिजरत करके मदीना चलना चाहिए। उनके दिल में आरज़ू पैदा होती है, उनके दिल में तमन्ना पैदा होती है। अब वही सुहैब रूमी है, हिजरत का इरादा करते हैं, तमाम सामान को इकट्ठा करके जब मक्का शरीफ की सरहद पर आते हैं, मक्का वाले आपका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं, सुहैब रूमी, तुम यहाँ आए थे तो मुहताज थे, तुम मक्का शरीफ में आए थे, तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, तन पर कपड़े नहीं थे, तुम हमारे पास आए हो, हमारे दरमियान पड़े हुए हो, हमारे दरमियान रहकर तिजारत हासिल किए हो, बड़ी बड़ी जायदादें को इकट्ठा किए हो, फ्लैट इकट्ठा किए हो, और तुम सारे सामान को लेकर के मदीना शरीफ जा रहे हो। हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। अगर तुम्हें अपने यार के पास जाना है, अगर तुम्हें अपने महबूब के पास जाना है, अपने दीमक के पास जाना है, अपने साथियों के पास जाना है, तो सारे सामान को यही सरहद पर छोड़ करके जाना होगा, सारे सामान को यही रख करके जाना होगा। और सुहैब रूमी कहते हैं, ऐ मक्का वालों, अगर तुम्हारी तमन्ना यही है, अगर तुम्हारी जिद यही है, अगर तुम्हारी मंशा यही है, मैं सारे माल को इकट्ठा छोड़ करके यही अपने दिलबर के पास चला जाऊं, अपने आका की बारगाह में हाजिर हो जाऊं, जो मैं सारे माल को यहीं पर छोड़ करके अपने यार के पास जा रहा हूं। और सुहैब रूमी है, उन्होंने ये नहीं पूछा है, मैं अपनी बीवी से मशवरा करके आता हूं, अपने बेटों से मशवरा करके आता हूं। आज तो मुसलमान होता, कहता ठीक है, रुको रुको, मैं जाके अपनी बीवी से पूछ करके आता हूं, अपने बेटों से मशवरा करके आता हूं। लेकिन सुहैब रूमी के दिल में जो ईमान है, उनका जज्बा है, वो देखें, सुहैब रूमी कहते हैं, ऐ मक्का वालों, अगर तुम्हारी तमन्ना यही है, अगर तुम्हारी मंशा यही है, मैं सारे माल को यही छोड़ करके रुखसत हो जाऊं, जो मैं सारे माल को यही छोड़ करके जाता हूं। जब सुहैब रूमी हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आपको हाजिर किया जाता है, सुहैब रूमी पहुंचते हैं, कहते हैं, या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, मैंने सारे माल को इकट्ठा किया, आपकी बारगाह में आने की तमन्ना कर रहा था, आपके बारगाह में आने का इरादा बनाया था, और मक्का की सरहद पर आता हूं। मक्का वाले हमारे रास्ते को रोक करके और कहते हैं, अगर तुम्हें मदीना शरीफ हिजरत करनी है, सारे माल को छोड़ करके जाना है। मैंने सारे माल को अपने ईमान को संभालते हुए, अपने ईमान की अजमत को समझते हुए आपकी बारगाह में सारे माल को कुर्बान करके आ गया हूं। आप मुसलमान हो, आइए देखें सुहैब रूमी जब ये वाकया पेश करते हैं हुजूर की बारगाह में, जब वो ये वाकये की तफसीर बयान करते हैं, तो मेरे आका खुश हो जाते हैं, मेरे आका मचल जाते हैं, और सुहैब रूमी को ये फरमाते हैं, या सुहैब रूमी रबिहल बया, या सुहैब रूमी रबिहल बया, या सुहैब रूमी रबिहल बया, या सुहैब रूमी। 3 बार अल्लाह के रसूल ने ये जुमला इरशाद फरमाया है। इसका मतलब ये है, ऐ सुहैब रूमी, तुम मक्का की सरहद पर अपने सारी जायदाद को छोड़ करके और ईमान की दौलत लेकर के मेरी बारगाह में हाजिर हो गए हो। ऐ सुहैब रूमी, तुमने घाटा नहीं किया है, बल्कि तुमने जो सौदा किया है वो बड़े फायदे का सौदा किया। ये सुहैब रूमी है, जिनके ईमान हमें ये गवाही दे रहे हैं कि ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, तुम्हें अल्लाह ने जो ईमान की दौलत अता की है, उस ईमान की दौलत का मकाम क्या है, उसको समझो, उसकी अजमत क्या है, उसको समझो। तुम्हें अल्लाह ने ईमान का सरमाया अता किया है। और मैं यहीं पर रुक करके इस बात को और सुहैब रूमी के वाक़े से इस कड़ी को छोड़ना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, हमारे गोने बाबा ने अल्लाह ने इनके दिल में इस बात को डाला, अगर ये अपने बाजी में किसी ऐसी चीज पर गामजन थे, तो अपने दिल में अल्लाह अपने दिल को ये टटोलते हैं और दिल को अपने दिल में झांकते हैं और ये सोचते हैं, हाँ यकीनी, अगर हम अपने तमाम गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, हम माजी में किस सूरत पर थे हमें ये नहीं देखना है, बल्कि हुजूर ने जो इरशाद फरमाया है, जो इंसान किसी बुराई से तौबा कर लेता है, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। अब यहाँ पर रुक करके इस बात को देखते हैं, सुहैब रूमी ने अपने सारी जायदाद को अपने ईमान पर कुर्बान कर दिया है। हमारे गोने बाबा से तो कहने वालों ने कहा था, अरे गोने बाबा, अरे जमील, आप अपनी बेटी की शादी करने वाले हैं, आपने बेटी की शादी से पहले उन लोगों को जहेज में सामान दिया है, अगर आप ईमान की दौलत से सरफराज हो जाते हैं, अगर आप उनके पास चले जाते हैं,
तो आपको जहेज का सामान कौन देगा? आपका घाटा हो जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। लेकिन इन्होंने ईमान की दौलत को फोकस समझते हुए सारी चीजों को कुर्बान कर दिया है और एक कहते नजर आए हैं हमें अल्लाह जो ईमान की दौलत से सरफराज कर रहा है, हमें उन चीजों को नहीं देखना है, उन जहेज के सामान को नहीं देखना है, बल्कि ईमान की दौलत सबसे बड़ी दौलत। वाह वाह वाह, बहुत सुभान अल्लाह। हमारे बहुत सारे गवाह हैं, यकीनन इन पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। मैं वैसे हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, इसी गांव का मैं भी रहने वाला हूँ। मैं जो बात कह रहा हूँ ये हकीकत पर मबनी बात है। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीन, ऐ ईमान वालो ईमान पर कायम रहो। अगर आप इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखें, हमारे इमाम साहब ने जो कहा कि कुछ सुधार पैदा हुई है। अगर आप इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखें या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीन, ऐ ईमान वालो अमन में आओ। अमन क्यों नहीं चाहते? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अमन में आ जाओ। ईमान वालो अमन 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 में आ जाओ। अगर इसके ईमान मफ़हूमी तर्जुमा को देखें या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीन, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ, ईमान पर कायम रहो। मैं आखिरी बात बताकर अपनी बात को खत्म कर दूं। अल्लाह क्यों हमसे कह रहा है